In pigeonhole principle state that you have n pigeonholes, more than n pigeons. To place these holes, at least one pigeonhole must contain more than one pigeon. तो अब देखिए n ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्रॉस m कंटेनर, सो n जो होगा वो ग्रेटर देन m से होगा. एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट. 10 पेयर ऑफ शॉक्स यानी कि 10 ऑब्जेक्ट्स पुट इनटू 9 ड्रॉर्स, 9 कंटेनर. सिंस मोर पेयर ऑफ शॉक्स देन ड्रॉर, एटलीस्ट वन ड्रॉर मस्ट कंटेन 2 पेयर ऑफ सॉक्स, यानी कि दो ड्रॉर जरूर, वन ड्रॉर जरूर होगा जिसमें कंटेन कर रही हो. जनरलाइज प्रिंसिपल की बात करें तो m जो है आइटम आर पुट इनटू m कंटेनर, देन एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन एटलीस्ट and by m time items. So hash function computer, hash function and collision. In hash function be more key than slot a hash table, then at least 2 key must hash to the same slot leading to the collision. Database indexing. When creating index of for the databases, if the number of record exceed the number of indexes as entries, we must have duplicate entry in some index slot. Sorting and searching. Sorting के cases में और स्टोरिंग के केसेस में when n numbers in a bounded range, if n exceed the range, duplicates are inevitable. फॉल्ट टॉलरेंस में भी इसका यूज किया. फेल, if n node fail out of m nodes, principle ensure that some resources will be duplicate among the remaining operation node, which is crucial for system resilience. Proof of principle. Assume that contradiction that each pigeonhole contain at least one pigeon. This means that m pigeon can be placed m pigeonholes, then n is always greater than m. This leads to contradiction, proving that principle. Application in proving existence. पॉइजन प्रिंसिपल इज फ्रीक्वेंटली यूज इन प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन. जहां पे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं वहां पे हम पिजन हॉल प्रिंसिपल यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस व्हेन प्रूविंग दैट एनी ग्रुप ऑफ 13 एटलीस्ट 2 मस्ट हैव बीन बोर्न इन सेम मंथ. एग्जांपल 13 पीपल ग्रुप ऑफ 30 एटलीस्ट 2 मस्ट बीन बोर्न इन द सेम मंथ. तो ही हो सकता है कि 13 ग्रेटर देन B12 से है. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं. हाउ वुड डिस्ट्रीब्यूट द स्टूडेंट इन क्लास. 30 स्टूडेंट्स इन 4 क्लासरूम. डेमोस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइज प्रिंसिपल. यहाँ पर हम पिजन हॉल प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या कहता है. n बाई m. n कितने हैं 30. 30 बाई 4 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7.5 विच इज इक्वल टू 8 अजूम करके चलते हैं. अब हमने इसको 8 अजूम कर लिया तो एट लीस्ट वन क्लासरूम will have 8 और मोर स्टूडेंट, यानी एटलीस्ट वन क्लास में 8 या मोर स्टूडेंट जरूर होंगे. सो दिस बिकॉज ऑफ कैन नॉट डिवाइड 30 इंटू 4 ग्रुप विदाउट हैविंग. तो एटलीस्ट जो होंगे वन क्लासरूम में 8 या 8 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे. तो मोर देन क्लासरूम विद मोर स्टूडेंट देन अदर. तो इवन द मोस्ट बैलेंस सिनेरियो जो होगा हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 8. तो क्लासेस में कितने हो सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 which is equal to 30. Imagine a drawer containing 12 red balls and 12 blue socks. 12 red and 12 blue all match. To ensure that at least 2 blue socks, you might need to put out 14 socks. So here, why the worst case scenario? In the worst case scenario, you could first draw all 12 socks. And to guarantee that at least 2 blue shocks, so need 2 blue shocks. Total is 14 shocks. सबसे पहले at least 2. तो हम क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे worst के सिनेरियो में 12 रेड ले लेंगे और 2 ब्लू शॉक्स ले. तो आपके पास टोटल 14 है. एप्लीकेशन एंड एग्जांपल. हैंड शेकिंग डिलेमा. हैंड शेकिंग का बड़ा क्वेश्चन पूछ जाता है. इन अ ग्रुप ऑफ 267 people, at least 2 individuals will have same number of friends. Each person can have between 0 to 266 friends. However, it is impossible for one person to have 0 friend while another have 266 friend. दो सिनेरियो हो गए, या 0 हो गया 260. As the latter friendship would be unreciprocated, therefore the possible number of friends range from 0 to 265. क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तभी तो 266 है. Proving that 260 possible friends. So with 267 pigeonhole principle, at least 2 people must share the same number of friends. तो by using तो आप कह सकते हैं कि 2 people जरूर शेयर कर रहे होंगे सेम नंबर ऑफ फ्रेंडशिप.
Generalization of the principle n by m times if n number of item principle extend more complex scenario. For instance, if n item are distributed among m container, then at least one container hold n by m item. Generalized form for it is particularly useful in probability theory and computer science, especially in hashing algorithm where collision are inevitable when number of item exceed the number of available hash value. यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोसेसर गिव 5 ग्रेड्स, प्रोफेसर गिव्स 5 grades A, B, C, D and F. What is the minimum number of students required so that four of them are guaranteed to receive the same grade? Here the grade represent the container pigeon sols, 5 pigeon sols हो गए. The student are items. To ensure that at least 4 students receive the same grade, we can apply generalized pigeonhole principle. In each grade can assign up to 3 students without repetition. Then with 5 grades we have up to 5 into 3, तो यानी कि 50 students हो. Each receive different grade. However, adding one more student marks it 16 ensure that at least one grade is assigned to at least 4 students. Therefore, minimum number of student is 60. तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने 5 ग्रेड्स थे तो each grade assigned to 3 student without repetition. अगर 3 स्टूडेंट हो तो 5 इंटू 3 15 स्टूडेंट हो गए, तो अगर 4 को देना है तो 1 प्लस कर देंगे तो 4 आपके पास आ जाए. बेसिक एप्लीकेशन क्वेश्चन में, बेसिक एप्लीकेशन के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ देयर आर 10 पेयर ऑफ शूज एंड 9 ऑफ बॉक्सेस आर स्टोर्ड देम, तो हाउ मेनी बॉक्सेस कंटेन एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ शूज. सिंस a more pair of shoes than boxes is 10 is greater than 9, at least one box must contain at least 2 pair of shoes. ये pigeonhole principle हो गया. Show that 13 people at least 2 have been born in the same month, counting 12 month, and 13 people, 13 is greater than 12, so at least one month must have at least 2 people. हैशिंग एंड क्लोजिंग क्वेश्चन की बात करें, हैशिंग एंड कोलिजन वाले क्वेश्चन की बात करें, तो 15 डिफरेंट कीज and a hash table of size 10. What can be inferred about the storage of the key? So 15 key are placed in 10 slots. At least one slot must contain at least 2 key, indicating a collision. तो कोलिजन को कैसे करेंगे किसी, क्योंकि एटलीस्ट वन स्लॉट होगा मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कीज. एटलीस्ट एक स्लॉट तो कर रहा है जो इंडिकेशन करेगा हमारे कोलिजन को. क्लियर है इतना? चलिए, तो फिर जनरलाइज प्रिंसिपल वही है कि n इज ग्रेटर देन सम इंटीजर k के m into k. n student are placed into m classroom where n is greater than m into n some integer k. What we conclude at least one classroom must contain k student. ये कहाँ यूज होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज करते हैं, और एल्गोरिथम डिजाइनिंग में, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में और डेटाबेस मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं पिजनहोल प्रिंसिपल के लिए. ये क्वेश्चन है, गौर क्वेश्चन है. In a class of 30 student, what is the minimum number of student who have same birthday month? तो बर्थडे मंथ में कितने हो गए? 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ ही होते हैं ईयर में. तो बाय पिजन और पिजन 30 स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय 12, देन एटलीस्ट वन स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट. तो अगर आप 30 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 से, तो 12 गुना 24, 2 से ज्यादा आएगा, विच इज इक्वल टू 2.5. हमको 3 कंसीडर करेंगे, तो 3 स्टूडेंट होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ में आएगा. एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे. कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम के लिए, group of 14 people, there are at least 2 who have same number of friend within the group. So each person at least 13 friend. क्यों? क्योंकि 14 people है तो एक निकाल दोगे तो 13 friend बनेंगे उसके. Since they can friend with everyone else in excluding themselves, so there are 14 people who can have 0 to 13 friend, which gives a 14 possible friendship count. According to the Bayesian principle, at least 2 people must share the same friendship count. At least तो 2 करेंगे ही करेंगे. क्यों? क्योंकि 14 डिवाइडेड बाय बर्थ, तो आपके पास 2 आ ही जाएंगे. क्लियर है इतना? If a hash table can store 10 entries and you inserting 15 unique key, 10 entries and 15 unique key must have happened regarding collisions. So since there are more keys 50 than the slots 10, at least one slot must contain 2 key. Collision are inevitable. 2 slot में एक तो होगा ही होगा, एक slot में 2 keys तो होंगी. How many integer must be chosen from 1 to 100 to ensure that at least 2 of them are congruent? Module 10. So 10 possible remainder when divided by
10. According to the Princeton principle, choosing 11 integer, at least 2 must have same remainder when divided by 10. तो यानी कि आपके पास सेम रिमाइंडर एटलीस्ट 2 तो होंगे, तो आपके पास 2 जिनके पास सेम रिमाइंडर आ जाएंगे। अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करें, पीजन होल्स कहाँ होता है? डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम एनालिसिस में, नेटवर्क थ्योरी में और क्रिप्टोग्राफी में हम इनको यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो गेट 18 में पूछा गया था, गेट 15 में पूछा गया था पास। हाउ मेनी different 4-digit number can be formed using the 6-digit without repetition? So how many 4-digit formed using digit without repetition? 4 digit, तो आपके पास 4 digit out of 6 digit, तो आप without repetition, तो आपके पास क्या परमुटेशन बनेगी? 6p4 which is equal to 6 factorial upon में 6 minus 4 का factorial which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 का factorial which is equal to 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया? 7. हाउ मेनी वे 5 स्टूडेंट कैन बी चूजन फ्रॉम द 12? तो यहाँ पे क्या लगेगा? चूजन आ रहा है, तो 12c5 which is equal to n फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है? 12 फैक्टोरियल, n 12 minus 5 is equal to 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, विच आगे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 से 7 कट गया, और 5 4 इंटू 3 12 कट गई, 5 इंटू 2 ये आपके पास 10 कट गया, तो आपके पास क्या गया? 9 इंटू 8 72 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज इक्वल टू 792 आंसर। ए पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। Password consists of 3 letter followed by 2 digit. So how many such password can be formed if repetition is allowed? तो 3 letters और 2 digits, यानी कि 1 2 3 letters हो सकते हैं और 2 digit। तो टोटल letters कितने होते हैं हमारे पास? 26, और digit कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 10। तो repetition allow है, तो 26 इंटू 26 इंटू 26, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 17576 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 17576। ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिससे आप पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज बुक कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट बुक्स? सिलेक्शन है, जहां पे भी सिलेक्शन होगी वहां पे हमारे पास कॉम्बिनेशन यूज होगी, जहां पे भी अरेंजमेंट होगा वहां हमारे पास परमुटेशन यूज होगी। तो 10c4 हो गया हमारा। क्या है 10c4? 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। जब इसको आप क्रॉस करोगे 9 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 3 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 3 210 आपके पास आंसर। हाउ मेनी वेज 3 वोवल्स कैन बी चूजिंग फ्रॉम द 5 वोवल? चूज आ गया यहाँ पे। अगर आप चूजिंग की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज होगा, 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो टोटल 10 बन जाएंगे। और कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास? 10 वेज। हाउ मेनी वेज 4 पीपल आर सिटेड इन अ रो? जब भी कभी रो में सिटेड हो या सेल्फ रखना हो तो सिंपल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास? 24। 6 करेक्टर पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड डिजिट। हाउ many such password can be formed if repetition is allowed? तो 6 character password consist of digit, letter and digit। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे, तो हमें ये नहीं पता कितने लेटर्स कितने कैरेक्टर्स हैं और कितने डिजिट हैं, तो यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन 6 है, तो टोटल 26 लेटर होते हैं और 10 आपके पास डिजिट होते हैं, तो टोटल 36 हो गए, और 36 की पावर 6 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। ए कमिटी ऑफ 4 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 टीचर एंड 6 स्टूडेंट। हाउ मेनी वे कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 स्टूडेंट मस्ट बी इंक्लूड? अब यहां क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एटलीस्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एट लीस्ट,
जहां पे भी हमारे पास एटलीस्ट हो जाए, तो यानी कि 2 स्टूडेंट तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। तो यानी कि हमारे पास 2 स्टूडेंट तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, मगर 2 तो हमारे पास होंगे। तो चलिए 2, अगर 2 सिलेक्ट कर लिए हमने, तो 2 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट, सॉरी 2 स्टूडेंट हो गए, तो वी कंसीडर पहला केस 2 टीचर प्लस 2 स्टूडेंट, 2 टीचर प्लस 2 स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या बनेगा, 6C2 मल्टीप्लाई बाय 8C2 which is equal to 15 into 28 which is equal to 420। अब दूसरा केस आ गया, 3 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर which is equal to 6C3 multiply by 8C1 which is equal to 20 multiply by 8 is equal to 160। चौथा केस क्या होगा, 4 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो जाए, तो क्या होगा 6C4 which is equal to 50। तो ये आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने हमारे पास, 420 प्लस 160 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे पास, हाउ मेनी वे लेटर ऑफ द वर्ड्स गेट अरेंज। जब भी अरेंजमेंट आए 4 लेटर्स हैं, कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, आंसर आपके पास 24, आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंजिंग 3 बुक्स ऑन अ सेल्फ इफ परमुटेशन प्रॉब्लम, यानी कि 3 बुक्स चूज करना है, तो 3 फैक्टोरियल 3 बुक्स और टू रीड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स, तो कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया तो हमारे पास क्या लगा 5C3 which is equal to 5 factorial into 3 factorial into 2 factorial which is equal to 5 into 4 factorial अपॉन में 3 factorial into 2। तो आपके पास आंसर क्या है, 5 बुक्स आर अरेंज इन अ सेल्फ, हाउ मेनी वे 5 बुक्स अरेंज इनटू 5 सेल्फ्स। तो 5 सेल्फ्स तो कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर इसको अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 120। अगर आप इसी को ऑन अ सेल्फ, तो अगर आप इसी को परमुटेशन की कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे, 5 इंटू 5 अरेंज करेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120, आंसर आ जाता है। इसीलिए हम जब भी परमुटेशन होता है अरेंजमेंट को करते हैं तो उसी तरह करते हैं। हाउ मेनी वे कैन 3 लेटर विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड गेट, 4 है, एन इज इक्वल टू कितने हैं 4 है, सिलेक्टेड कितना है 3 है, तो कितने वे से कर सकते हैं आप इसको, P4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 which is equal to 4 factorial which is equal to how many ways 2 student can be chosen from a group of 5। 2 चूज करने यानी कि कॉम्बिनेशन लगेगा C5, 2, टोटल ग्रुप कितना है n कितना है 5 और r कितना है हमारे पास 2। तो 5 से तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 ही होता है, तो इसको नहीं लिखना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास 10 वेज। हाउ मेनी वे 3 क्वेश्चन सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ 8 क्वेश्चन, सिलेक्शन है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 8, r की वैल्यू हो गई 3। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्या होगा 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 5 से 5 6 से 6, तो ये आपके पास 56 कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर हम परमुटेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, पासवर्ड जनरेशन में यूज करते हैं, डेटा स्टोरेज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है, एसेंशियल इन ग्राफ थ्योरी और कॉम्बिनेटर ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया जाता है, रियल लाइफ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, लॉटरी के लिए, रफल ड्रॉ के लिए इसको यूज किया जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी वे कैन 4 लेटर टू बी चूजन, चूजन आ गया तो कॉम्बिनेशन फ्रॉम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 9 डिस्टिंक्ट लेटर। ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर है, तो हमारे पास क्या C9 4 या फिर आप कह सकते हो 9C, 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 7 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2। तो आपके पास 3 से 3 कैंसल, 4 से 8 कैंसल, तो 2 7 56 और 3 आपके पास 127, आपके पास आंसर आ जाए, आपके पास 126 आंसर आ जाए। हाउ मेनी वे 5 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म यूजिंग द लेटर विदाउट रेपिटेशन। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, रेपिटेशन अरेंज करना आ जाए, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है।
तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 डायरेक्ट करना है। अगर आप परम्यूटेशन में लेके भी जाएंगे तो क्या होगा, 5 प्लॉसेस होंगे, 5 पे 5 रिप्लेस करना होगा तो आपके पास ये आ जाए। इन हाउ मेनी 6 पीपल टू सिट इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। 6 पीपल हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो जो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, n-1 फैक्टोरियल। तो जब भी सर्कुलर 6-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 आपके पास आंसर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पहले कर चुके हैं, मगर अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए किया था। अगर आपके पास 3 सेट्स आ जाएं तो आप उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो करेंगे तो पहले ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास फॉर्मूला होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन। तो अब हमारे पास 40 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, 30 स्टूडेंट स्टडी बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट लीस्ट। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, एम यूनियन पी विच इज इक्वल टू एम मैथमेटिक्स फिजिक्स माइनस एम इंटरसेक्शन 14 प्लस एम मैथमेटिक्स कितने पढ़े 40, फिजिक्स कितने पढ़े 50 माइनस दोनों कितना पढ़ रहे हैं हमारे पास मैथमेटिक्स 30 विच इज इक्वल टू 60 जो स्टूडेंट होंगे एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1 सब्जेक्ट काउंटिंग वैलिड पासवर्ड 4 डिजिट नंबर 00 और 99 डू नॉट कंटेन द डिजिट 7। 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए 10 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 10,000। अब विदाउट 7, विदाउट नंबर विदाउट 7 विच इज इक्वल टू 9.4, 9 की पावर 4 6561। तो एक्सक्लूजन काउंट द नंबर विद एट लीस्ट 1 7 यूजिंग द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूजिंग डिटेल काउंट मेथड। टोटल में से माइनस कर दोगे जितने 7 के आने के कॉम्बिनेशन चांसेस हैं तो आपके पास ये आ जाए टोटल कॉम्बिनेशन विदाउट नॉट कंटेनिंग द 7 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group of 100 people, 6 like tea, 50 like coffee, 20 like what, find the who at least one beverage, tea plus coffee minus tea intersection coffee। तो which is equal to tea कितने लाइक कर रहे हैं 60, कॉफी कितने लाइक कर रहे हैं 50, दोनों कितने लाइक कर रहे हैं 20, तो आपके पास 90 आंसर हो गया। तो 90 by at least one beverage। देखिए सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट show that 200 study AI, 250 study ML, 100 study both, find the number of students studying at least one subject। तो क्या हो गया AI और ML, A union M which is equal to A plus M minus A intersection M which is equal to study कितने कर AI कितने कर रहे हैं 200, ML कितने कर रहे हैं 250 और दोनों कितने कर रहे हैं 100, तो कितने हो गए 450 माइनस 100 इज इक्वल टू 350। तो 350 स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट। इन अ सर्वे 100 people use Python, 80 use Java, 40 use both at least one language, Python union Java which is equal to Python plus Java minus using both Python and Java which is equal to 100 plus 80 minus 40 which is equal to 140 स्टूडेंट यूज करेंगे at least one language। 6 digit number do not contain digit 5। How many way 6 digit number do not contain digit 5। 6 digit number कितने होंगे 10 की पावर 6, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे do not contain 5, तो 5 कितने हो गए 9 की पावर 6 which is equal to हमारे पास टोटल आ जाएगी 6 डिजिट नंबर थे। अब इसको करना है 6 डिजिट नंबर तो क्या हो सकते हैं 0 0 1 0, 6 डिजिट नंबर तो तभी बनेगा 3 6 से लेके 9 9 तक जाएगा, आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है तो तभी तो 6 बनेगा। तो फर्स्ट करेक्टर 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि आपके पास कितने डिजिट अलाउडेड कितने होंगे 0 से 9 के बीच में 9 डिजिट अलाउडेड, 9 डिजिट अलाउ हो गए। तो 9 एक्सक्लूडिंग 5, तो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए 8, क्यों क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं होगा 1 2 3 4 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 ऑप्शन। 9 की पावर 5 क्योंकि 0 नहीं हो सकता,
टोटल हमारे पास कितने थे, 9 डिजिट थे एक्सक्लूडिंग 5, जीरो को लेकर भी। तो हमारे पास क्या हो गए, 8 इंटू 9 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 9 की पावर 5 होती है हमारे पास 5909049 तो ये आपके पास आंसर बन जाता है 472392। तो आपके पास ये आंसर बन जाता है। थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए कंपनी हैव 200 एम्प्लॉय 120 यूजिंग विंडो 90 यूजिंग लाइनक्स 15 बोथ। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई कि विंडो यूनियन लाइनक्स विच इज इक्वल टू विंडो प्लस लाइनक्स माइनस विंडो इंटरसेक्शन लाइनक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200 एम्प्लॉय 120 यूजिंग विंडो 120 90 यूजिंग लाइनक्स एंड 50 माइनस 50 बोथ। तो 210 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 160 हमारे पास आंसर आ जाए। कंप्यूट ए नंबर ऑफ पासवर्ड ऑफ लेंथ 4 डिजिट 0 to 9 डू नॉट कंटेन 1, 0 to 9 एक्सक्लूडिंग 1। तो 9 डिजिट लेफ्ट हो जाएंगे, तो कितने बच गए हमारे पास, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जीरो पहले आ सकता है नहीं क्योंकि नंबर नहीं है, ये पासवर्ड की लेंथ क्या है हमारे पास 4 डिजिट की है, 4 डिजिट। तो मैक्सिमम रेपिटेशन अलाउस कितने होगी 9 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 6561 इन अ ग्रुप ऑफ 300 150 लाइक क्रिकेट 120 लाइक फुटबॉल 80 लाइक बोथ फाइंड द वो एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 120 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 1। Suppose student taking subject 30 student take mathematics, 25 take physics and 20 take chemistry, 10 taken both mathematics and physics, 5 student take both mathematics and chemistry, 3 student take both physics and chemistry, 2 takes all 3 subject। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास m union p union c which is equal to m plus p plus c minus m union p minus m intersection p m intersection c minus p intersection c plus m intersection p intersection c। तो m कितने में है 30, फिजिक्स कितने में है 20 ले रहे हैं और 20 स्टूडेंट केमिस्ट्री माइनस बोथ कितने ले रहे हैं मैथ एंड फिजिक्स 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट मैथ एंड केमिस्ट्री ये हमारे पास 5 ले रहे हैं, 3 स्टूडेंट ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 स्टूडेंट ले रहे हैं बोथ सब्जेक्ट, 3 प्लस 5 75 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 70 माइनस 5 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 59। हमारे पास 59 आंसर आ जाएगा टेकिंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। रोलिंग टू कंसीडर अ 2 6-side dice, we want to find the probability that at least one dice shows a 6, at least एक dice 6 A be the event at 1 show a 6 and B is the event that dice 2 6 show a 6। तो inclusion exclusion principle P of A कितना है which is equal to 16 and P of B कितना है ये भी हमारे पास 16 है and probability P of A इंटरसेक्शन B कितना है हमारे पास 136 है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 16 प्लस 16 माइनस 136 विच इज इक्वल टू 14 आंसर आपके पास आ जाए। सपोज ए कमिटी 10 people need to form from a group of 20 people where at least 5 must be manager, there are 8 managers। Using the principle we can determine viable combination by excluding case whether fewer than 5 managers are सिलेक्टेड। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास चूज द 10 पीपल, चूज करने हैं हम 10 पीपल फ्रॉम 20। तो टोटल केसेस कितने हो गए 25, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू तो सब्ट्रैक्ट कर दें जो इनवैलिड केसेस हैं तो फीवर देन 5 देन 5 मैनेजर यानी कि 0 से लेके 4 तक मैनेजर चूज करने। तो हमने समीशन k इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक 8 इंटू k कर दिया इंटू 12 इंटू 10 माइनस के कर दिए जितने भी मैनेजर के चूज करेंगे। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आंसर आता है 184756 टोटल केसेस। और अगर कम्बिनेशन करें 80 मल्टीप्लाई बाय 1210 विच इज इक्वल टू 801 होता है इंटू 66 विच इज इक्वल टू 66 केसेस, फिर 81 के लिए, फिर 82 के लिए, 83 के लिए और 84 के लिए।
तो चूज किया। उसके बाद 12 9 के लिए, 12 8 के लिए, 12 7 और 12 6 के लिए। तो 12 9 के लिए हमारे पास पड़ा 8 इंटू 220 विच इज इक्वल टू 760। 8 2 में हमारे पास क्या आया 28 मल्टीप्लाई बाय 495 विच इज इक्वल टू 13860। 56 8 3 के लिए 56 मल्टीप्लाई बाय 792 विच इज इक्वल टू 44352। और 8 4 के लिए 70 मल्टीप्लाई बाय 924 विच इज इक्वल टू 64680। तो हमारे पास आ गया। तो इनवैलिड केसेस कितने हो गए टोटल, जब सारों को सम किया, इन सबका सम किया, टोटल इनवैलिड केसेस कितने आ गए हमारे पास, विच इज इक्वल टू टोटल इनवैलिड केसेस हमारे पास आ गए 1 2 4 7 1 8 आ गए। टोटल केसेस ये थे, इनवैलिड केसेस आ गए, तो वैलिड केसेस क्या आ गए, जब इसमें से माइनस करोगे 1 2 4 7 1 8 तो वैलिड केसेस आ जाएंगे 60038। तो आपके पास टोटल वैलिड केसेस आ गए या वैलिड कमेटी मेंबर। आप इतने वे से आप बना। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि हमारे इंडक्शन से रिलेटेड। ये पहला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं तो इसको बार बार नहीं करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन भी हम पहले ही कर चुके हैं वैसे तो। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, एन सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें इंडक्शन के थ्रू फर्स्ट केसेस में तो क्या हो जाएगा, 1 पुट कर दें तो LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू 1, RHS क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास 1 हो जाएगा, तो ट्रू हो गई। अगर n की वैल्यू k पुट कर दें तो क्या होगा आपके पास, LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगर हम n की वैल्यू को k इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दें तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1 इंटू प्लस 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें हाइपोथेसिस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS यूजिंग द हाइपोथेसिस k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास प्रूफ हो गया बाय इंडक्शन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिविजिबल बाय, अब इसको करना है डिविजिबल बाय 3। अब सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ जाएगा हमारे पास। अगर 1 के लिए है तो हम इसको n इज इक्वल टू k के लिए पुट करते हैं। जब k के लिए पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो जाएगा विच इंप्लाइज 2 की पावर k प्लस 1 इक्वलेंट 1 मॉड। अगर इसी तरह हम यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर k प्लस 1 के लिए लिखें तो क्या होगा हमारे पास 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 1 डिविजिबल बाय 5 नहीं 3 डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 1 हो जाएगा। यूजिंग द हाइपोथेसिस थ्योरम तो क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा था पहले 2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मॉड 3 विच इम्प्लाइज 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मॉड 3। अगर मॉड 3 है तो ट्रू हो गई। दिस इज ट्रू फॉर n प्लस n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बाय यूजिंग इंडक्शन थ्योरम।